Welcome dear students to the Eclabias Academy portal, and today's topic is Boolean algebra laws, and this topic is very important from the exam point of view, right? So we will discuss this topic in detail, and so let's discuss this in detail. So the first law is 0 bar, which is equal to 1, right? Uh, Bar means this line is there above the zero, that is sometimes called bar, or it can also be called inversion, right? And that means 0 bar is equal to 1, means opposite. As we know that in digital electronics we have only two values, 0 and 1. So the opposite of 0 will be 1 and 1's opposite will be 0, right? So the second formula will be in opposite of 1 bar will be 0, right? Okay, and the third one will be a double bar. Suppose there is two bar lines, means two double lines are there. So these two, if there are two bar lines over any symbol, then the result will be the original symbol itself, right? Okay, if we see a few more example of this, like for example, if we see, so it is not necessary that it is only applicable for A only. So suppose it is B bar, then it will be B only, right? So concept clear. So it is not hard and fast rule that it is only applicable for A only. So any symbol it can be, right? Okay, so let's proceed for the next one. So the fourth one will be A plus 0. So the fourth one will be A plus 0. If we add any symbol to the alphabet A, right? अगर हम कोई भी अल्फाबेट ए में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा हमारा ए ही आएगा, राइट? क्लियर है? ओके, देन वी विल प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन. सो ए प्लस वन कितना होता है अगर हम वन में ए ऐड करें, राइट? एज वी नो दैट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वन ही है, राइट? सो वन से ज्यादा तो हो नहीं सकती, सो वन प्लस ए विल अल्टीमेटली भी वन ही आएगा, राइट? क्लियर है इतना? ओके, सो नेक्स्ट, सो ये जो है ये कुछ एक फार्मूलाज हैं, राइट? सो अभी टेंशन मत लेना, ये फार्मूलाज हम यूज करेंगे जब हम आगे देखेंगे कि नंबर ऑफ गेट्स कैसे रिड्यूस करने हैं, अगर हमें कोई सर्किट बनाना है तो उस टाइम पे ये सारे फार्मूलाज हेल्पफुल होंगे, राइट? ओके, सो जो नेक्स्ट फार्मूला है सिक्स वन, वो है ए प्लस ए इज इक्वल टू, सो इसका आंसर होता है ए, राइट? चलो अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कैसे आएगा. So for example, so alphabet A can have two values, right? So example first can be if I assume, okay, one second. Let us, this is the first case. So let us assume, in the first case, one second. So let us assume let A is equal to 0 first, right? So if we assume A to be 0, and for the second case we will assume A to be 1, right? So in this case, if A is 0, so that means 0 plus 0, and we know 0 plus 0 is equal to how much? 0, right? Obviously. And then next example, in next example, this is example 2, okay? In example 2, if we again assume let A is equal to 1, now if we assume A equal to 1, in that case what will be there? So in that case, because A we have assumed to be 1, so if we apply in this formula, so 1 plus 1, 1 plus 1 will be, as we know that the maximum value will be 1 in digital electronics, so 1 plus 1 will also comes out to be 1, clear? Okay, so the next formula is seventh one, a plus a bar. a plus a bar कितना होगा बेटा? सो इसका आंसर जो होता है a plus a bar का, that is equal to 1, right? चलो अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों आया ये आंसर. चलो, सो फॉर एग्जांपल, वन सेकेंड. सो फॉर एग्जांपल, अगर हम एज्यूम करें, ओके, हाँ जी, कलर चेंज नहीं हो रहा है एक्चुअली, हाँ जी. सो फॉर एग्जांपल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. So for example, like
अगर हम a को एज्यूम कर रहे हैं, लेट a टू बी 0, राइट, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, 0 एंड 1, वो आपका विषय है, राइट। सो अगर a की वैल्यू हम 0 एज्यूम कर रहे हैं, सो उस केस में क्या होगा, 0 और प्लस a बार क्या होता है, ऑपोजिट ऑफ a। सो अगर हमने a को 0 माना है तो a बार कितना हो जाएगा, 1, राइट। यहाँ अभी हम ऐसा लिख सकते हैं 0 प्लस 0 बार, ओके। चलो समझने की कोशिश करते हैं। सो 0 प्लस 0 बार, सो 0 का तो 0 ही आ जाएगा। 0 बार क्या होता है, 0 बार इज इक्वल टू 1। हमने ऊपर पढ़ा था सेकंड फार्मूला में, अगर हम यहाँ पे देखें 0 बार क्या था, फर्स्ट फार्मूला सॉरी, 0 बार इक्वल टू 1 होता है ना। सो 0 बार क्या आ गया, 1 आ गया, तो 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। सो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या माना, 1 माना। क्लियर है। इसी तरह अगर कोई बोले कि नहीं हम इस फार्मूला से नहीं चलना चाहते, हम ऑपोजिट मानना चाहते हैं ना, एग्जाम्पल 2 मान लेते हैं, अगर हम इसको एग्जाम्पल 1 माने, सो लेट a इक्वल टू 1। सो आप एग्जाम में कई बार प्रूव करने के लिए भी आ जाता है, राइट। सो आप इस तरह से प्रूव करके दे सकते हैं उन्हें। सो अगर हम a की वैल्यू 1 मान लें एंड फिर से a की वैल्यू 1 ही है और ऊपर बार है, राइट। सो 1 प्लस 1 का बार कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे देखो सेकंड फार्मूला में सीखा था 1 का बार क्या होता है, बार और इन्वर्टेड of 1, that is 0, right? So 1 bar will comes out to be 0, right? So 1 plus 0 कितना आ जाएगा, 1, right? क्लियर है। सो यही आंसर है। देखो दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है हमारा, 1 ही आ रहा है ना, इसीलिए हमने a प्लस a बार का फाइनल जो आंसर माना था वो यहाँ पे क्या माना, 1 माना। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। सो हम देखो सिस्टमेटिकली चलेंगे प्रॉपर रूल के साथ, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो, आपको कुछ भी रटना ना पड़े बेसिकली। ठीक है, चलो अगले फार्मूला पे चलते हैं, 8th फार्मूला पे, राइट। सो 8th फार्मूला क्या है हमारा, हाँ जी, a प्लस बी, एक हमारे पास ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है दैट वी विल स्टडी नाउ। a प्लस बी क्या आ जाएगा हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू, इसको हम b प्लस a भी लिख सकते हैं, राइट। चलो एक और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, फर्स्टली वी विल राइट बोथ ऑफ देम एंड देन वी विल डिस्कस। या फिर अगर प्लस की जगह अगर डॉट भी दिया हो, राइट, so in that case also a dot b is equal to b dot a, so equally applicable है। so ये कौन सी प्रॉपर्टी के अंडर आता है, so both these things will come under commutative property, write down, it is under commutative property। क्लियर है। सो इसका बेसिक मीनिंग है लाइक सिंपल मैथ में जैसे आप अज्यूम कर सकते हो, लाइक a प्लस बी है, लाइक एट्थ आई एम डिस्कसिंग दिस एट्थ वन। सो a की वैल्यू सपोज अगर हम नॉर्मल वैल्यू, नॉर्मल मैथ की वैल्यू बात करें, अगर ये a 0 है b 1 है, राइट, सो 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। बट अगर हम 1 प्लस 0 भी कर दें, अगर a को ऑपोजिट भी कर दें, अगर दो वैल्यू है, एक 0 एक 1 है, अच्छा 0 प्लस 1 कर दें तब भी आंसर 1 ही आएगा, या 1 को पहले लिख लें 0 को बाद में लिख लें, 1 प्लस 0 तब भी 1 ही आएगा, राइट। सो ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। सो मीन्स ऑर्डर मैटर नहीं करता मोस्ट, मतलब बेसिक जो बात है सीखने वाली वो ये है कि जो हमारे बुलियन लॉज है उनमें इस वाले पर्टिकुलर फार्मूला में जो आपका ऑर्डर है सिंबल्स का वो मैटर नहीं करेगा, राइट। आप आगे पीछे किसी भी तरह से लिख सकते हो। क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट फार्मूला पे चलते हैं जो है हमारा फार्मूला नंबर 10। सो फार्मूला नंबर 10 होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आता है हमारा a प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं, सो इट विल बी a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में आएगा इट इज b, राइट। सो कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज b, so this is a plus b and this is a plus c। clear है। and this comes under which property, this property is called distributive property। okay, so this is distributive property। स्पेस थोड़ी सी कम है, ओके डन। ठीक है, ये क्लियर है। आपने क्या किया, ये दोनों जो सिंबल्स हैं जो प्रोडक्ट में हैं इनको ब्रेक करके लिख देना है। ठीक है, a प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस सी, राइट। सो दिस कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। क्लियर है। चलो इसको हम इनवर्स तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो वापस यही प्रूव हो जाएगा, राइट। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी 11th विच इज a प्लस ए बार बी, a प्लस ए बार बी एंड इट इज इक्वल टू a प्लस
बी। क्लियर है? अब इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी सिग्निफाइज। ये प्रॉपर्टी क्या सिग्निफाई करती है हमारी? ओके, सो दिस प्रॉपर्टी सिग्निफाइज, अगर हमने अभी पढ़ा था है ना, ये वाला लो यहीं पे रहने देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला। सो इसकी मदद से, डिस्ट्रीब्यूटिव वाले लो की मदद से एक्सप्लेन करना की कोशिश करते हैं। सो इट इज ए प्लस ए बार बी है, ये फार्मूला है, ठीक है, इतना ही फार्मूला है, इसे हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रूव दिस कि कैसे आया ये। हाँ, सो ए प्लस ए बार बी आया राइट। सो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस ए बार, और सेकंड ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? बाय विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? इस सिंबल को सेपरेट कर दो, सेकंड सिंबल को सेपरेट कर दो राइट। सो नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी। नाउ ए प्लस ए बार कितना होगा? जो हमने पढ़ा था, अगर ए की वैल्यू 1 है सपोज, तो ए बार 0, सो 1 प्लस 0 1 आएगा राइट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? आप यहाँ से भी देख सकते हो, हमने यहाँ पे लिखा भी था कहीं पे, एक सेकेंड, या प्रॉपर्टी नंबर 7 में कि ए प्लस ए बार कितना होता है? 1 होता है ना, हमने ये प्रूव भी किया था। सो अगर आप नोट्स बना रहे हो सो आप साइमल्टेनियसली देख भी सकते हो नोट से राइट। सो ए प्लस बी, अब क्या होगा? आपने 1 से मल्टीप्लाई करना, हमें पता है अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? सेम वही नंबर आ जाता है राइट। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए प्लस बी ही आ जाएगा। क्लियर? सो यही हमारी राइट हैंड साइड थी राइट। सो हेंस प्रूव, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे राइट। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखें, 1 सेकेंड, अगर हम यहाँ पे लिख लें, सो प्रूफ के लिए हम यहाँ पे लेके चले थे अपनी लेफ्ट हैंड साइड, और जो यहाँ पे हमें अचीव हो गया दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट, इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गया राइट। क्लियर है? इस तरह से अगर आपको एग्जाम में वो प्रूफ के लिए भी पूछते हैं तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हो राइट। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। 12th प्रॉपर्टी है। ओके, सो 12th प्रॉपर्टी क्या है हमारी? दिस इज ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इज इक्वल टू, सो इसका आंसर क्या आएगा? इट्स आंसर इज ए बी प्लस, पहले हम आंसर लिख लेते हैं देन विल डिस्कस, ए बी प्लस ए बार सी। ओके, इस वाले केस में क्या हो रहा है? आपका ये जो देखो, एक सिंबल है ए और नेक्स्ट टाइम है ए बार राइट। सो यहाँ पे हमारे पास है ये वाला सिंबल बी। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बी है, यहाँ पे ये सी है राइट। और यही वाले सिंबल जो बी एंड सी है, देन नेक्स्ट टर्म में क्या हो रहा है? कंबाइंड होके प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा है राइट। सो इस वाली टर्म को हम अगर इस फॉर्म में आए तो इसको क्या कर सकते हैं? हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली क्या है हमारी, इसको हम कहते हैं रिडंडेंट टर्म राइट। रिडंडेंट मीन्स जो एक्स्ट्रा टर्म है जिसे हम स्किप कर सकते हैं। So this is our redundant term, right? So we can skip this term. Clear? So आंसर जो आ जाएगा ए बी प्लस ए बार सी, बाकी का आंसर फर्स्ट 2 टर्म्स आ जाएंगी। टोटल 3 टर्म्स का सम था लेफ्ट हैंड साइड में। सो राइट हैंड साइड में कितनी टर्म्स रहेगी? सिर्फ 2 ही टर्म्स रहेगी राइट। इसको हम प्रूव कर सकते हैं के मैप की हेल्प से। अभी हमने के मैप वगैरह काफी आगे जाके पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, सो वहाँ डिस्कस करेंगे फिर से राइट। अभी के लिए आप ऐसे याद कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, देन 13th प्रॉपर्टी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार डायरेक्टली इनमें से कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली पूछ लेते हैं राइट। सो नेक्स्ट है जैसे ए डॉट जीरो। सो अगर किसी भी टर्म को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है? जीरो ही आता है राइट। सो सिंपल। 14th प्रॉपर्टी है ए डॉट वन। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई राइट। सो अगर हम इन एक्चुअल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड गेट का ये हम डॉट यूज करते हैं राइट। सो ए डॉट वन कितना आ जाएगा? मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है ए वन के साथ, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा आपका? ए आ जाएगा राइट। सो ए की जगह अगर कोई और सिंबल होता तो वो आ जाता, फॉर एग्जाम्पल बी डॉट वन होता तो बी आ जाता राइट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं 15th फार्मूला। सो दैट इज ए डॉट ए बार राइट। सो अगर हम इसका आंसर देखें, सो इट इज ए डॉट ए बार इज जीरो राइट। चलो प्रूव करके देखते हैं अब हाउ टू प्रूव दैट। चलो सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इन विच वी विल अज्यूम लेट ए इक्वल टू
जीरो जीरो एज्यूम कर लेते हैं चलो। सो ए अगर जीरो है सो दिस इज जीरो बार। सो जीरो डॉट जीरो बार कितना होता है, वन होता है, राइट। ओके, सो जीरो डॉट वन कितना आ जाएगा, जीरो को वन से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, राइट। और हमारा आंसर भी क्या था, जीरो ही था, राइट। चलो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में भी आंसर सेम जीरो ही आना चाहिए, तभी हमारी राइट हैंड साइड इक्वली वैलिड होगी। सो बोथ केसेस में आंसर हमारा सेम रहना चाहिए, जीरो। चलो देखते हैं प्रूव करके जीरो आता है या नहीं। सो नेक्स्ट केस में वी आर अगेन assuming a to be 1 now. In the previous case we have assumed it to be 0. Now we are assuming a as 1, right? चलो तो 1 रखी, a की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो 1 डॉट 1 बार, सो 1 डॉट 1 बार कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, राइट। सो अगेन 1 डॉट 0 कितना आ जाएगा, मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, क्लियर है। सो दिस इज अवर 15 फार्मूला। सो यू कैन सी इन बोथ द केसेस हमारा आंसर क्या आ रहा है, दोनों केसेस में हमारा आंसर आ रहा है जीरो, राइट। इस केस में भी जीरो, इस केस में भी जीरो, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, जीरो एज्यूम किया था फार्मूला में, राइट। सो आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए फार्मूलाज। बाकी अगर एज सच एग्जाम में अगर प्रूफ के लिए आ रहा है, सो आई एम आल्सो टेलिंग यू द प्रूफ्स कि हाँ इस तरह से प्रूव होना है, बट एज सच एग्जाम के लिए आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, राइट। चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं। थ्रू आउट द सेशन आप जो भी ये सेमेस्टर होता है इंजीनियरिंग का, उसमें आप यही पढ़ोगे, राइट। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, ए डॉट बी प्लस सी। सो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे मल्टीप्लाई होता है नॉर्मली, एक टर्म ब्रैकेट के बाहर है और बाकी ब्रैकेट के अंदर। सो ए को फर्स्टली क्या करोगे, बी से मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट ए को क्या करोगे, सी से, तो ये क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी, राइट। क्लियर है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। लाइक वी हैव मल्टीप्लाई दिस फर्स्टली विद दिस टर्म एंड देन वी अगेन मल्टीप्लाई ए विद द सी, सो आंसर कम्स आउट टू बी ए बी प्लस ए सी, क्लियर है। ओके चलो अब नेक्स्ट फार्मूला, I'm less space so I have to go to new sheet. Okay, so next one is formula number 17th. So for formula number 17th we will see how this thing will work. So formula number 17 is a plus, sorry, a dot a bar plus b. So इसका आंसर कितना आएगा, इट विल बी ए बी, राइट। सो इसका आंसर आ जाएगा ए बी। अगर आप प्रूव करना चाहते हैं तो आप प्रूव करके देख सकते हैं। चलो कर ही लेते हैं प्रूव, ठीक है। सो प्रूव करने के लिए वी विल एज्यूम लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है हमारी, सो वी हैव द लेफ्ट हैंड साइड एज ए डॉट ए बार प्लस बी, राइट। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जैसे अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को, सो इट विल बी ए डॉट ए बार, और अगर नेक्स्ट टर्म को करेंगे देन इट विल बी ए डॉट बी। सो ए डॉट ए बार क्या होता है, अगर हम ए को वन मान लें तो ए बार कितना आ जाएगा, जीरो। सो वन डॉट जीरो क्या आ जाएगा, जीरो, जीरो प्लस ए डॉट बी, है ना। सो जीरो को अगर हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो अल्टीमेटली वही नंबर आता है। सो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी और ए बी इज द सेम थिंग, राइट। सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर डॉट नहीं भी लगाया सो दैट मीन्स द सेम, means the terms are getting multiplied, right? So it is coming out to be equal to the right hand side. Clear है concept? So इस तरह से आप प्रूव करके देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को। ओके सो काफ़ी इजी है ये सब्जेक्ट, काफ़ी इजी है। ओनली थिंग इज दैट यू हैव टू रिमेंबर फ्यू फार्मूलाज, राइट। सो हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत याद रखना ही पड़ेगा, राइट। वो भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि हम देख रहे हैं एग्जांपल्स की मदद से प्रूव करके, तो अगर आप भूल भी जाओ तो आप इस तरह से प्रूव करके देख सकते हो कि आपका जो राइट हैंड साइड है वो आपने ठीक लिखी है या नहीं लिखी है, राइट। अगर वो सेम नहीं आ रही है तो मीन्स कुछ एरर की है आपने, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला 18 का आंसर क्या आएगा। सो ये सेम है जैसे हमने आई थिंक 12th नंबर लिखा था, उसमें रिडंडेंट टर्म आई थी ना, सेम उसी तरह से ये फार्मूला। So there is a bar over the symbol, so this is bar a plus b, and in the next bracket it is a bar plus c. चलो
अब देखते हैं कैसे आएगा ये टर्म। सो इस वाले टर्म में आप देख सकते हैं यहाँ पे b है, यहाँ पे a प्लस b था, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है a बार, ठीक है। फर्स्ट टर्म सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे a है यहाँ a बार, और नेक्स्ट टर्म चेंज हो रही है c, और बाद में नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, यही वाली जो मैंने रेड से हाईलाइट किए हैं, यही टर्म्स प्लस होके थर्ड ब्रैकेट में आ रही है, राइट। सो इस केस में आप क्या कर सकते हो, इस थर्ड ब्रैकेट को एलिमिनेट कर सकते हो। सो दिस इज द रिडंडेंट टर्म। क्लियर है? चलो, वैसे काफ़ी रिलेटिवली कम यूज़ होता है ये, बट स्टिल यू शुड हैव द आइडिया। ओके, चलो अब 19th एंड 20th जो हैं, these are the important one, they comes under the De Morgan's law, so we will see how the things work. So if De Morgan's law basically say, if there is addition of few terms like a plus b plus c and so on up to n, and if there is a bar over all the symbols, ठीक है, मीन्स अगर सारी टर्म्स का एडिशन हो रहा है और उस सारी टर्म्स के ऊपर एक बार का सिंबल है, सो डी मॉर्गन्स लॉ बोलता है कि आंसर क्या आएगा, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ इट सेज ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, मीन्स जो ऊपर का बार वाला सिंबल या इन्वर्टेड सिंबल जो भी आप बोलो, अगर उसको हम ब्रेक करते हैं, सो जो प्लस साइन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई के साइन में, डॉट साइन में, एंड ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन मीन्स देखो लाइन ब्रेक होगी मीन्स इंडिविजुअल सिंबल के ऊपर आ गई, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, सारे सिंबल्स के ऊपर कंबाइंड एक ही बार था, ठीक है। और प्लस का साइन किस में कन्वर्ट हो गया, डॉट के साइन में। क्लियर है? चलो, एक और रूल है फॉर डी मॉर्गन्स लॉ, उसमें सिर्फ सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, ऑपोजिट है वो। सपोज a डॉट b डॉट c डॉट so on up to n है, राइट, एंड देयर इज अ बार ओवर ऑल द सिंबल्स। सो क्या होगा, सेम ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। सो ब्रेक कर दो अगर हम ऊपर लिए बार को, सो हर एक सिंबल के ऊपर इंडिविजुअल बार आ जाएगा, एंड डॉट साइन किससे रिप्लेस हो जाएगा, प्लस साइन से इस केस में, राइट। क्लियर है? So this is basically your, these two formulas comes under which law? This is De Morgan's law. Clear? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो इन दोनों फार्मूलाज को एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लेना। ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट, एग्जाम में आपके, लाइक चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें डायरेक्टली भी पूछे जाता है ये वाला फार्मूला, डी मॉर्गन्स लॉ। दे कैन आस्क डिफाइन डी मॉर्गन्स लॉ और गिव एग्जांपल्स ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, राइट। सो इन द डिफरेंट डिफरेंट वे दे कैन आस्क। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, ए प्लस ए बी का आंसर क्या आएगा, इट्स आंसर इज ए, राइट। चलो इसका प्रूफ देखते हैं कैसे आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड इज ए प्लस ए बी। सो ए प्लस ए बी में से कुछ कॉमन आ सकता है, ए कॉमन आ जाएगा, अगर ए कॉमन आ गया तो यहाँ क्या रह गया, वन, और यहाँ क्या रह जाएगा, बी। और वन प्लस बी क्या होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैक्सिमम ओनली टू वैल्यूज होती हैं, 0 एंड 1, और मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है ना, तो 1 प्लस बी अल्टीमेटली क्या आएगा, 1 ही आएगा। सो ए डॉट वन कितना आ जाएगा, ए ही आ जाएगा, राइट। सो अल्टीमेटली जो आपका ये जो आंसर आया दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव, राइट। सो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हो ये वाले फार्मूले का भी, ठीक है। चलो अब एक और लास्ट फार्मूला है हमारे पास, दैट इज ए बी प्लस ए बी बार, लास्ट फार्मूला है। सो देखते हैं कैसे होगा। सो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास, ए ही आता है ना, तो प्रूफ करना है इसका या खुद कर लोगे, चलो कर देता हूँ ना इसका प्रूफ। चलो बाद में पर आपको आना चाहिए कि कैसे किए थे ये सारे प्रूफ्स, एक बार देख लेना। सो ए बी प्लस ए बी बार, अगर हम इसमें से कॉमन देखें, सो क्या कॉमन आ सकता है, ए कॉमन आ सकता है। सो सेकेंड टर्म बाकी क्या बच जाएगी, फर्स्ट टर्म में से बी बच गया, फर्स्ट टर्म में से बी, और सेकेंड टर्म में से बी बार बच गया, राइट। बी प्लस बी बार कितना होता है,
अगर हम b को 0 माने तो b बार 1, तो 0 + 1 1, राइट। और अगर हम a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, राइट। और वो ही हमारा किसके इक्विवेलेंट है, राइट हैंड साइड के। क्लियर है? सो दीज आर द फ्यू फार्मूलाज दैट वी हैव डिस्कस, राइट। सो ये आपको आने चाहिए ताकि हम जो अपकमिंग लेक्चर्स में हम देखेंगे कि ये कैसे प्रूव करने हैं ना। तो डिफरेंट डिफरेंट मीन्स न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे और डिफरेंट एप्लीकेशंस में हम ये फार्मूलाज को कैसे यूज करेंगे, राइट। Okay, so thanks everybody, thanks for the lecture. If you like this video, so please do like, share and subscribe. Thanks everybody, thanks for the session.